Hello, my dear children. Here, Miss Razia Riaz Qureshi with you. Today, we will do chapter The First War of Independence. I think you are aware of the basics of this chapter. In Standard 8, you have studied about the uprising. So, basic you have already studied. Now, you will study further about it. Some more information about it. The First War of Independence. We Indians say it's as a first war of independence, but the Britishers never considered it as a first war of independence. They never considered that. They said that it's just a small fight of sepoys and nothing else. छोटा सा fight है sepoys का and nothing else. बट हम हिंदुस्तानियों के लिए ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था भारत को आज़ादी दिलाने का, टू गेट रिड ऑफ दिस क्लेवर ब्रिटिशर्स, शेल्फिश ब्रिटिशर्स से रिड ऑफ होने का ये पहला स्टेप था जो हम इंडियंस ने बहुत सोच समझ के लिया था. दो इट फेल्ड बट इट अरोज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड taught us many lessons about the martyrs that devoted their life for Mother India. In this chapter, we will study about the first martyr who devoted his life for Mother India. And the feelings of nationalism that arose in the people of Indians. We were not there at that time, but we can understand the situation of at that time, what was the consequence by reading this chapter. So, it is clear that we Indians considered it as a first war of independence, but Britishers said no, it's just a small fight of misunderstanding of sepoys and nothing else. And we Indians were adversely affected by these Britishers. Indians got annoyed, irritated. They wanted to get rid of these Britishers. So, to want to get rid of these Britishers, to make Britishers run away from India, the Indians took this step, and this was the first step, though it is called the First War of Independence. In 1757, there was a battle of which we know as Battle of Plassey. This Battle of Plassey was fought between Sirajud-Dowlah and East India Company. Here the Britishers are East India Company. Before that battle, this East India Company was just as a trading company. उन्हें सिर्फ हमारे भारत से business करना था and nothing more than that. But after this Battle of Plassey, these Britishers became greedy. These Britishers started spreading all over the India and wanted to capture the political and social power of our India. उनके मन में लालच जाग गया कि अब तो पूरे भारत को कैप्चर ही करना है. Though Sirajud-Dowlah lost the battle and East India Company took over the power. Battle of Plassey में East India Company जीत गई, Sirajud-Dowlah हार गए. And from there starts the greediness and the cruelness of these Britishers. And it adversely affected the rulers of Indian state, sepoys, jamindar, peasants, artisans, traders, pandit, Maulvis, all were affected by these greedy Britishers, because these Britishers was very greedy and they ill-treated we Indians and wanted to capture our India. Let me set first, well, my dear children. Hoping I am clear to all of you, my dear children. Here we will study the causes of the First World War. From the 1757 to 1857, 1757 there was a Battle of Plassey, and from here starts the role of Britishers. 1857 till 1857, Indians realized between this year that now Britishers are to be moved from India, otherwise they will not let us to live peacefully. So marked Britishers' conquest and rapid expansion. There was a rapid expansion between this time
of the dominion of the India, and they wanted to capture the political and social and trading company, capture the trading company of Indians, and wanted to change Indian society, wanted to take over the power of Indians. And also it affected the religion also in India. Religious activities also were affected by these Britishers, and many patrons were removed from their positions. Many sepoys were moved from their positions. Indian rulers, princes, jamindars. I told you, my dear children, jamindars, peasants, traders, artisans, pandit, Malvives, all were affected by these Britishers. Thus, 1857 conditions were ripe for the mass. Now, people here started gathering for the uprising. बहुत हो गया Britishers का जुल्म. अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा. So the Indians decided, and the accumulated grievance of the people burst forth in the form of the First War of Independence. So it is called the First War of Independence. Political causes. We will see political causes, social causes, economic causes, military causes. No need to go through the each point of the causes. Just 2 to 3 are enough. You learn 4. Learn 4. 3 you have to write it. By hearted 3. I don't think nothing to be by heart. Just listen as a story. It will get into your minds. You can write in your own words in ICSE. So, policy of expansion. As I said, after this Battle of Plassey, there was a rapid expansion in Britishers. They started annexing. They started the process of imperialism. They started colonization and capturing, taking over the power of some small states. And they started series of war. Okay. The Indian states were one of the major grievances of the Indian rulers. Ever since the Battle of Plassey, there was a Battle of Plassey in 1757. East India Company territorial power increased rapidly, yes. And they increased rapidly. There was a 4 ways in political policy of expansion. There was 4 ways. One was the outright wars. Outright wars means series of war. They started series of war. एक करके हर जगह पे अपना एक एक करके हर जगह को वो कैप्चर करना शुरू कर दिया उन लोगों ने. टू एक्सपैंड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया एंड टू सेफगार्ड देयर इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट. सबसे पहले उन्होंने सॉरी अगेंस्ट द इंडियन रूलर डिफरेंट बैटल ऑफ बक्सर. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी देयर वाज अ बैटल ऑफ बक्सर. दे कैप्चर्ड बक्सर. दे बिकेम द मास्टर ऑफ बंगाल, Bihar and Odisha. After that, there was a first Anglo-Mysore war. They captured the Mysore also in east, and Indian company annexed the Mysore was also under the Britishers. Now the third Anglo-Maratha war. There was second Anglo-Sikh war where Punjab became under the power of British. Here Mysore was also captured under the British. Peshwa was removed. Entire domains. Maratha also became under British. So you can see here that Punjab, Bihar, Odisha, Buxar, Mysore, Sindh, Assam, now here Arkan and Tenasserim and Pegu in Myanmar all became under the region of British. British started controlling this state. There was multiple of wars. उन्होंने सब तरफ घेराबंदी शुरू कर दिया. सब तरफ अपना राज चलाने लगा. ब्रिटिशर्स धीरे धीरे capture करने लगे. Now here comes by subsidiary alliance. This subsidiary alliance was promoted by Lord Wellesley. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. This subsidiary alliance means children's that there was an agreement. There was an agreement between the princes and these Britishers. These Britishers wanted to capture the princely states of we Indians. एक एग्रीमेंट रहती थी. उस एग्रीमेंट्स पे ये पॉइंट्स रहते थे और उन्हें इन पॉइंट्स को पढ़कर साइन करना. रेदर दे डिडंट एग्री टू साइन, बट दीज प्रिंसेस द किंग्स वेर फोर्स टू साइन दिस अलायंस. उनका कहना था कि अगर तुम इस पे साइन करते हो तो हम तुम्हारी प्रोटेक्शन की 100% गारंटी देते हैं. ब्रिटिशर्स सेड दैट वी विल प्रोटेक्ट यू. इफ एनीवन अटैक्स इन योर स्टेट वी विल गिव यू अ फुल प्रोटेक्शंस. We will give you full protections. We will take care of you. We will think of your independence, and we will think good of you. We will give you freedom.
And these all were the thing, we will give you the supreme power, but this was not good. This Britishers was like a jackal, they were very clever, लोमड़ी की तरह थे, और ये पूरे भारत को हड़पना चाहते थे। ये बस चाहते थे कि ये एग्रीमेंट को साइन कर दे, अपने राज्य पूरा हमारे हवाले कर दे, और हम इन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। दिस वॉज द थिंग, because there will be no strong leader, no strong king, and they gave this stand to British people, gave their own to give their power to British, and it was just for name. Nothing was given, no protection was given to Indians, princes, no protection was given by if anyone attacks any problem, no, nothing. Britishers gave nothing. It was just to make them sign that alliance. And one thing more you can see that, and agreed to maintain British troop at their own cost. और हम इंडियंस भी उन ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स, उन ब्रिटिशर्स सोल्जर्स हमारे इंडिया के ही खाएंगे, हम ही उनका कॉस्ट चुकाएंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? वर्चुअली लॉस देयर इंडिपेंडेंस। और देखो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस, द किंग बिकेम पैलेसलेस एंड ऑल्सो हेल्पलेस एंड लॉस देयर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। अपना राज्य भी खो दिया, अपनी ताकत भी खो दी, अपने सैनिक भी खो दिए, और अपनी आज़ादी भी खो दिया। एंड हियर द किंगडम ऑफ अवध वॉज द फर्स्ट टू एंटर इन टू द अलायंस। और फर्स्ट कौन था? अवध ही था जो इस अलायंस को जिसने साइन किया था। एंड ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर। बाई हुक और कुक ब्रिटिश कैप्चर्ड द स्टेट्स एंड स्टार्टेड एनेक्सिंग एरिया बाय एरिया। सो अवध वॉज नेक्स्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस रूल। अवध के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि तुम अच्छे से शासन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, यू द रूलिंग, द वे यू आर रूलिंग इज नॉट गुड, सो यू गिव अस एंड वी विल रूल। दिस British says, British said, you give us the control, we will rule perfectly, you are not perfect. इस तरह से उन्होंने अवध का राज्य अपने आप में कर लिया सब्सिडरी अलायंस से। निजाम ऑफ हैदराबाद, द रूलर ऑफ मैसूर, राज ऑफ तंजौर एंड सिंधा एंड द राजपुर स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, मकेरी, बूंदी एंड द रूलर ऑफ भारतपुर। सो दीज ऑल वेर अंडर द ब्रिटिशर्स। आपने देखा कैसे उन्होंने बहुत ही चालाकी से अलायंस को साइन करवाया। इनका मकसद था बस कैप्चर करना, धन लूटना, और उस जगह पे अपना रूल करना। बिकॉज ब्रिटिशर्स वेर वेरी क्लेवर माई डियर, दे जस्ट वॉन्टेड टू रूल ओवर इंडिया एंड नथिंग एल्स, wanted to prison we Indians. Now here come next by using the doctrine of lapse. Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. Remember doctrine, remember Dalhousie. Doctrine of lapse. Meaning of this was that the area where the kings and queen live, king and queen lives, if that king doesn't have its own child, his own child, then he cannot put any successor of his kingdom. अगर वो राजा मर जाता है और उसकी अगर अपनी कोई औलाद नहीं होती है तो वो उस राज्य को वो सक्सीड नहीं कर पाता। फिर उस राज्य को ब्रिटिशर्स, दे हैव टू हैंड ओवर देयर स्टेट्स टू दिस ब्रिटिशर्स. That queen cannot keep that palace with her and rule at that area. That was the thing which was announced, proclaimed by Dalhousie. Indian ruler died without a male. Remember, a male child should be there. Female cannot rule over the palace, rule over the states. Kingdom would lapse. वो kingdom को उनके हाथ से छिन जाएगा. And it would come under the company territory in India. वो किंगडम, अगर वो किंग मर जाता है तो वो पर्टिकुलर स्टेट्स का किंगडम, एंड इफ ही डजंट हैड अ मेल चाइल्ड ही कैन नॉट पुट हिज सक्सेसर इन हिज थ्रोन. दैट इज दैट किंगडम हैज टू बी लैप्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. When here is the example what happened. Really it affected. First was Jhansi. Anand Rao was not recognized as a lawful successor to the throne. और इनकी एक अपनी, दे हैड, रानी लक्ष्मी बाई हैड her own child, but it is not mentioned here, but child died after 2-3 months. I'm not sure about it. That is not mentioned here. And Rani Lakshmi Bai adopted a son, and she wanted to control, she wanted to
put that child in place of Anand Rao, but Britishers didn't agreed. But Rani Lakshmibai didn't give up. Rani Lakshmibai said, I will never hand over my kingdom to you all. जब तक मेरी सास है मैं लड़ूंगी अपनी किंगडम के लिए. And she fought. That lady fought. The rulers of Indian states believed that their states were annexed, but not by application of doctrine of lapse, by the lapse of all morals, all part of British. Here you can see the great Queen Rani Lakshmi Bai. Now, on the pretext of alleged misrule, उन्होंने आरोप लगाया अवध पे that you cannot rule properly. You're the power of ruling, your power of governing, the way of you are governing the states is not good. You cannot govern perfectly. So you give that state to me, I will rule. Britishers said that, and like this, Britishers put their control over Awadh and removed the king of Awadh from their throne and took under the, and this Awadh came under the power of company dominions. Now, there's Lord Dalhousie, and who did this? Lord Dalhousie justified that annexation of Awadh on the pretext of good of the governed. Now, what were the changes came when Britishers took over Awadh? Awadh को उन्होंने लेने के बाद क्या किया? टॉर्चर करना शुरू कर दिया इंडियंस पे. Indians were very badly affected. They had to pay higher revenue टैक्स लगा दिया फूड पे, हाउसेस पे, फेरीज छोटे छोटे ना कुंभागाड़ के कुछ बेचते हैं, छोटे छोटे मार्केट्स सेल्स करते हैं सामान, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया. एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, उनके राज्य में जो लोग रहते थे, संगीतकार रहते थे, नाचने वाले रहते थे, मन बहलाने वाले रहते थे, वो सब जॉबलेस हो गए. सोल्जर्स भी दे वर ऑल्सो पुट आउट ऑफ देयर जॉब्स. Jamindars, talukdars all became removed from their positions, and sepoys, 75,000 of Awadh were affected. 75,000 soldiers were affected by it, and they Indians को क्या था? Indians were forced to fight for Britishers. वो अपने ही पड़ोसी देश से, neighbor countries से उन्हें लड़ना पड़ता था. For what? Just for these Britishers and nothing else. And these higher taxes, land, families led to Awadh. The people of Awadh had to suffer a lot, and these arose the feeling of nationalism in the people of Awadh, and they started, now it's enough is enough, now we have to take any strong step for these Britishers, and they took part in the uprising of independence, this uprising of 1857. Here the next point, disrespect shown to Bahadur Shah. Children, I think I'm getting to you all. Please like my channel. I'm new to it. This is my first YouTube channel. I'm trying to improve myself. I think, let me know whether I'm clear to you all or not. So please comment me that whether I'm clear to you all or not. Whether I need any improvement or not, please comment me. Okay, my dear children, let's continue. Disrespect shown to Bahadur Shah. Bahadur Shah, Indians at the time of uprising declared Bahadur Shah as the king of India. They said they became, Bahadur Shah was the leader of this uprising. जब मेरठ से जब सारे सोल्जर्स जब गए तो उन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह को कहा कि आप ही मेरे लीडर बनिए और आप ही हम सब के लीडर बनिए. और एंड बहादुर शाह वेलकम दैट सोल्जर्स वेरी होपफुली एंड ऑल्सो मेक द अरेंजमेंट टू लिव their soldiers and make the planning for the uprising. So Bahadur Shah Jafar was king of Delhi, and Britishers disrespected this Bahadur Shah Jafar. How you can see that there was a coin के ऊपर राजा के चित्र बने होते थे. वो कॉइन के नाम को ब्रिटिशर्स ने हटा दिया, रिमूव्ड, एंड राजा रहते थे लाल किला में. King used to, Bahadur Shah Jafar used to sit in throne in Lal Killa, and these Britishers said, "Thou no more you can sit in Red Fort." Bahadur Shah Jafar was not allowed to sit in the Red Fort for their palace, and this palace and Bahadur Shah Jafar has to shift near the Qutub Minar. Okay, this was the disrespect. His image was removed from the coin पर से उसके इमेज को हटा दिया गया था. बहादुर शाह जफर was evicted from the Red Fort. उन्हें रेड फोर्ट से भी हटा दिया गया था और कुतुब मीनार के किनारे कहीं कोई जगह में उन्हें रहने के लिए ब्रिटिशर्स ने
भेज दिया. So this was the disrespect given to Bahadur Shah Jafar. Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successor would not allowed to use the imperial titles. और इसके मरने के बाद इसके बच्चों को इनका टाइटल नहीं मिलेगा, वो राजा नहीं बनेंगे. No, and there would be no prince of his son. His son would not be given the name of princess. The decision of the British hurt the feeling of Muslims. और ब्रिटिशर्स का ये फैसला मुस्लिम्स को बहुत हर्ट किया. एंड द जीनत महल, द वाइफ ऑफ बहादुर शाह, बिकेन प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम. और बेगम जीनत महल उसके ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर दी. Treatment given to Nana Sahib. So Nana Sahib was the adopted son of Peshwa Bajirao II, and Nana Sahib was the last Peshwa. The Britishers refused to grant Nana Sahib pension. तो राजा के बाद जो होता है उसे मरने के बाद उसे पेंशन मिलता है. Leaders of Maratha, who is Peshwa? Peshwa is known as the leaders of Maratha. तो उस पेंशन को ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि अब पेंशन तुम्हें भी नहीं देंगे. नाना साहिब वॉज फोर्स टू लिव इन कानपुर, और उनसे उनका महल भी छीन लिया और उसको फोर्स किया कानपुर में रहने का. एंड हिज फैमिली सेट इन फोर्स टू लिव एट कानपुर एंड लेफ्ट फ्रॉम देयर फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट एट पूना. एंड वाइडली रिसेंटेड इन मराठा रीजन, नाना साहिब हैज इनहेरिटेड वेल्थ from the former Peshwa. He utilized in sending emigrants to different parts of the country. Awareness among the, और इस वजह से नाना साहिब को वहाँ से हटा दिया ब्रिटिशर्स ने. उनकी पेंशन बंद कर दी, उनकी बुरी हालात हो गई और वो धीरे धीरे लोगों के अंदर अपराइजिंग का फीलिंग देने लगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को समझाने लगे. इस तरह से लोग धीरे धीरे इस अपराइजिंग के लिए जुड़ते चले गए. Nana Sahib also traveled between Delhi and Lucknow to gather support for the movement. वो धीरे धीरे लोगों को समझाने लगे ब्रिटिशर्स के how these Britishers are affecting we Indians, how they are capturing, annexing, started the colonizations in India. So making people aware of this Britishers misrule and arising the feeling of nationalism in the people and to force people to take some strong step against the Britishers. लोगों को समझाने लगे कि अब कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों को एकजुट बनाना होगा. वी विल हैव टू क्रिएट मास अगेंस्ट दिस ब्रिटिशर्स. And the other Indian rulers who were not adversely affected also became suspicious of their future. उन्हें डर भी लगता था कि अगर ये रिवोल्ट नहीं काम किया तो फिर ब्रिटिशर्स हमें छोड़ेंगे नहीं. तो like this the consequence was at that time. Absentee sovereignty of the British means that India was being ruled by British government. इंडिया पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था एंड ब्रिटिशर्स ने हर जगह पे टैक्स लगा के रखा था. हर जगह पे रेवेन्यू सिस्टम चला था, लैंड पे, हर सामान पे, हर चीज़ पे. और ये टैक्स कहाँ जाता था? ये टैक्स इंग्लैंड जाता था. तो इंडियन वेल्थ वॉज बीइंग ड्रेन्ड टू इंग्लैंड एंड नॉट यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर. इंडिया का पैसा इंडिया के वेलफेयर में नहीं लगता था. इंडिया का पैसा कहाँ जाता था? इंग्लैंड के वेलफेयर में लगता था. सो द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि ये तो हमारा पैसा है, हमारा पैसा दूसरे देश में क्यों जा रहा है. This also make the people arouse that we should take steps against these Britishers. Now here we come about the socio-religious causes. Society. What were the changes made by the British in the society, and the people of the society became aggressive because of these Britishers. Interference with social customs. इन्होंने social customs के साथ भी खेलना शुरू कर दिया. Some of the social introduced the British in India were aimed in improving the condition of people. However, while introducing such reforms, ये कुछ नई चीजों को लाना इन लोगों ने शुरू कर दिया. अपने कुछ नए कस्टम्स सोसाइटी में लाना शुरू कर दिया. जैसे एबोलिशन ऑफ सती होता है ना कि अगर हस्बैंड मर गए तो उसकी चिता में उसकी वाइफ अगर लाइव है तो उसको भी जल जाना है. तो दिस स्टॉप दिस.
ये उस वक्त, अब ये लगता है कि हाँ ये सही हुआ, पर उस वक्त लोगों को ये बिलीफ था कि ये हमारे धर्म के साथ खेल रहे, प्लेइंग विद द बिलीव्स ऑफ आवर कस्टम, आवर रिलीजन, इंट्रोड्यूसिंग द विडो रीमैरिज। अब हस्बैंड मर गए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। नाउ डेज वी थिंक इट इज गुड, बट दैट पीपल लिविंग एट दैट टाइम दे कंसिडर्ड इट एज that this should not happen. This is the humiliating done to our custom, our society, our religion. उन लोगों को लगा कि हमारा धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। एंड दिस वॉज मेड बाय विडो रीमैरिज बाय राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा वॉज बैंड बाय राजा राम मोहन रॉय and started interfering in business. They did good things, but the way they did was wrong. They could not explain the Indians that हाँ this is good for you, we are doing good for your welfare. कुछ चीज़ों उन्होंने अच्छी की, पर उनका करने का तरीका बहुत ही गलत था. And here becomes the apprehension about modern innovations. कुछ modern innovations की सोसाइटी में, जैसे कि स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल दिए और इनोवेशंस किए, जैसे टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर आया, रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ. उस वक्त लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि ये रेलवे की पटरियां किस लिए बिछाई जा रही है, टेलीग्राफ किस लिए हो रहा है भाई, ये खंबे जो गड़ रहे हैं इंटरनेट्स के, या जो पोल लग रहे हैं, ये सब क्यों लग रहे हैं. सो कुछ ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे. ऑर्थोडॉक्स इंडियंस उन्हें बोलते हैं जो कट्टर भारतवासी होते हैं, कट्टर भारतवासी होते हैं. नोटेड दैट द रेलवेज कंपार्टमेंट्स एंड द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट वेर मेड टू सिट बाय साइड. उनको ये पहले तो जाति और भेदभाव की भी भावना बहुत ज़्यादा थी. दे थॉट दैट अब ये छोटी जाति बड़ी जाति को अगल बगल बैठाएंगे और इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा. ये बिलीफ था उन लोगों के अंदर. देयर वाज रूमर दैट the telegraph poles are created to hang. They had a rumor that now they have created a pole and they will hang us in that pole only if we will do any mischief. So that was the condition at that time. People were illiterate, my dear. That's why they were thinking like that ये ब्रिटिशर्स तो हमारे दुश्मन है ही. अब इन्होंने खुले आम हमारे लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया. ये पोल गाड़ा है, इसमें ये हमें टांगेंगे. एंड द रेलवे कंपार्टमेंट्स आर मेंट टू हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट को वो अगल बगल बैठा देंगे और हमारे धर्म को बर्बाद कर देंगे. They believe that the Britishers has introduced such practices to defy their caste and religions, and the Indians thought, this orthodox Indians thought, that these are the steps taken by Britishers to just destroy our religion. उन लोगों के अंदर ऐसा सोच आने लगा. And policy of racial discrimination, गोरे और काला का. Britishers always believed that we fair peoples are always superior of Indians and followed the policy of contempt, and European officials ill-treated and insulted Indians. Britishers had a belief, उन्हें हमेशा लगता था कि we are superior, we are the supreme powers and the Indians are black, these are always insulted. वो हमेशा insult करते थे Indians का and discriminations करते थे and Britishers from Indian masses. सो ये सब भी वजह था जिसके कारण इंडियंस के अंदर ये फीलिंग आया कि नहीं अब तो कोई ठोस कदम उठाना ही होगा. करप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉलिसी ऑफ पिटी ऑफिशियल्स वेर करप्ट. और करप्ट तो थे ही, ब्रिटिशर्स तो चालाक थे ही, ब्रिटिशर्स तो धोखेबाज थे. दे वर वेरी क्लेवर लाइक अ जैकल. द रिच गॉट अवे विद द क्राइम एंड द कॉमन मैन वॉज लूटेड. जो अमीर रहते थे वो अपना रास्ते बदल लिया करते थे, पर जो गरीब रहते थे उन्हें इनकी बात माननी पड़ती थी और वही लूटे जाते थे. Now here operations of the so these many points need to learn, my dear children. Just social religious cause the main 2-3 points, 3-4 points is enough. Activities of missionaries, like activities of missionaries स्कूल खोले गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए. इंडियंस को ये लगने लगा कि ये मिशनरी स्कूल्स, अब तो ये सब लोगों को मिशनरी पढ़ा लिखा के क्रिश्चियन ही बना देंगे, सबको मिशनरीज ही बना देंगे. दे पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट नाउ द ब्रिटिश बिगिन टू इंटरफियर विद देयर लोकल रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स ऑल्सो. नाउ दे विल स्टार्ट द आइडियल वर्शिप एंड डबल लोकल बेनिफिट्स ऑफ इग्नोरेंस. नाउ द इंडियंस थॉट that there was an increase both in the number of activities of Christian missionaries. Indian thought that the government was supporting missionaries who would convert them into Christianity.
इंडियंस को ये फीलिंग आने लगा कि अब इंडियन स्टार्टेड थिंकिंग दैट नाउ दिस ब्रिटिशर्स विल स्टार्ट चेंजिंग आवर रिलीजन ऑल्सो, नाउ दे विल स्टार्ट टू कन्वर्टिंग आवर रिलीजन इनटू क्रिश्चियनिटी, वो लोग अब हमें क्रिश्चियन बना देंगे, उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स होने लगी। फियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ और उनके अंदर ये फीलिंग आ गई कि अब ये हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे और हमें भी अब अंग्रेज बना देंगे, उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ गई थी। English class in Calcutta Madarsa, which was a Muslim institution. Latest English classes were introduced in Banaras Sanskrit College. Calcutta मदरसा में सॉरी मुस्लिम्स को लगा कि अब हमारे बच्चे अब मॉडर्न एजुकेशन पढ़ेंगे, उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा, अभी उर्दू नहीं पढ़ने देंगे। इधर संस्कृत कॉलेज में लगा कि अब इनके बच्चों में भी गलत असर पड़ेगा। द शिफ्टिंग ऑफ एम्फेसिस ऑफ ओरिएंटल लर्निंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज नॉट रिसीव्ड वेल, और ये एक गंदा इम्पैक्ट, एक गलत इम्पैक्ट छोड़ती है इंडियंस पे। नाउ स्पेशली पंडिट्स एंड मौलवीज वेर अफेक्टेड, वो लोग सोचने लगे कि अब मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों पे कैसा असर देगा। दिस सॉ एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज, दे हैड अ फियर दैट इट विल चेंज, ये चेंज ला देगी हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे। एंड द पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग एट द एम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, उन्हें शक होने लगा कि ये वेस्टर्न एजुकेशन से इन लोगों ने क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया। was not to promote literature and science but to encourage their children to become Christians. उन लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गया कि उन्हें लिटरेचर और साइंस की नॉलेज नहीं दी जाएगी, उन्हें अब क्रिश्चियन बनाया जाएगा, उन्हें क्रिश्चियन बनने का नॉलेज दिया जाएगा। टैक्सिंग रिलीजन प्लेसेस, अब मंदिर मस्जिद जाने पे भी उन लोगों ने टैक्स लगा दिया। डिपेंड करता है, द फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन दीज लैंड्स बिगन टू प्रोपगेट, और इस वजह से वो प्रोपगेट करना, इधर से उधर माइग्रेट करना पड़ता था इंडियंस को। ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू अंडरमाइन द रिलीजन ऑफ इंडिया, वो उनके रिलीजियस मैटर में भी इंटरफेयर करने लगी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्ट इन 1850 चेंज हिंदू लॉ प्रॉपर्टी। So importance are there 3-4, you do it well, my dear children. All these small points are no need to write it, big points to learn, like interference of social customs, apprehension of modern innovations, fear of western educations, activities of missionaries. These 4 points to learn, that is enough. Economic causes, exploitation of economic resources. Britishers used to take raw materials from India, used to make the good ready in Britain, and then that goods are again brought to India, and that goods are again sold to we Indians with heavy taxes. हमारे देश का रॉ मटेरियल, भारत का रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन में सामान तैयार होता था और तैयार होकर ये फिर इंडिया इंपोर्ट होता था, और हमें इंडियंस को हमारे रॉ मटेरियल से बनाए हुए सामान हमी को हाई टैक्स पे बेचे जाते थे। सो दिस वॉज द सिस्टम दैट ब्रिटिशर्स अप्लाइड। इंडियंस वेर फोर्स टू एक्सपोर्ट एट चीपर रेट्स, कम दाम में रॉ मटेरियल्स लेते थे, रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, एंड दैट ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रीज नीड अर्जेंटली, और ये प्राइमरी नीड बन गई थी ब्रिटिशर्स के, रॉ कॉटन एंड रॉ सिल्क, plantation products like indigo and tea and food grains which were in short supply in Britain, और ये सब हमारा इंडिया का सामान जाता था ब्रिटेन। imported raw materials export our industrial goods, and while Indians products were subjected to high import duties in England, and Indians handmade goods were unable to compete with the cheaper. अब जितना समय में मशीन सामान बनाती है उतना समय में हाथ से तो सामान बनती नहीं है। मशीन्स do heavy duty in less time, more goods are produced by the help of machines, but if it is meant by handmade goods, you cannot produce at the same time, you cannot produce at the same time the same number of goods. So that was the things. England में machines में good बनते थे और इंडिया में हाथ से बनते थे, so Indians could not compete with the machine made goods, and machine made goods, though it can produced in less time more goods, so it is cheaper, and handmade goods, that is
कॉस्ट, उस पर कॉस्ट पड़ता था, अच्छा खासा कॉस्ट पड़ जाता था हैंडमेड गुड्स में, मेहनत पड़ता था, तो मजदूरी लगती थी उसमें, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता था, तो इंडियंस के सामान नहीं बिकते थे, और जो मशीन मेड गुड्स ब्रिटेन से आते थे वो बिक जाते थे। एंड दे रूइंड द इंडियन इंडस्ट्री, और इस तरह से इंडियन इंडस्ट्री रूइंड हो गई, बर्बाद हो गई। रिड्यूस द एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर्स, और जब मशीन्स काम करने लगे तो लेबर भी घट गए, अब तो मशीन काम करने लगे, और जब हाथ से बने सामान बिक नहीं रहे थे तो लोग भी से रोजगार छीन गया, वो भी हेल्पलेस हो गए, जॉबलेस हो गए। एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फूड ग्रेन्स डिप्राइव्ड इंडिया फ्रॉम हर एग्रीकल्चर सरप्लस एंड रेज द प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, और इस वजह से जब रॉ मटेरियल्स ही वो सस्ते दाम में दे, पैसे से लेकर वो सस्ते दाम में रॉ मटेरियल हमसे लेते थे, और वो रॉ मटेरियल्स लेकर ब्रिटेन जाते थे, जो रॉ मटेरियल सस्ते दामों में बिकता था, वो रॉ मटेरियल्स को भी प्रोड्यूस करने में जो लगता था वो उससे compete नहीं कर पाते थे। You can see here the raise the prices of raw materials. Thus, the change in the nature of Indian trades became an instrument for exploiting Indian resources. और इस वजह से बहुत ही बुरा वक्त का सामना करना पड़ा। एग्रीकल्चर में भी बहुत नुकसान हुआ, लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लेबर भी जॉबलेस हो गए। एंड दिस ऑल, ये सारे फीलिंग्स थे जो लोगों के अंदर पनपना शुरू हुए, ये सारे रीजंस थे, ये अपराइज क्यों हुआ, क्यों ये सब एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठ खड़े हुए, ये सारे रीजंस थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, टिल द बैटल ऑफ प्लासी द यूरोपियन ट्रेडर्स यूज्ड टू ब्रिंग गोल्ड इनटू इंडिया। गोल्ड, इंडिया में गोल्ड लाते थे, बट इंडियन कॉटन एंड सिल्क, हाउएवर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल ब्रिटिशर्स स्टॉप गेटिंग गोल्ड टू इंडिया, वो फिर गोल्ड लाना बंद कर दिया, वो सोना देकर सामान लिया करते थे इंडिया से। बट जब वो उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया तो वो बिना सोना नहीं, वो जोर जबरदस्ती से हमारे इंडिया से बिना कुछ दिए ही सामान लेके जाने लगे, वो फोर्सफुली ये काम करने लगे। एंड द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, ऑफ विच इंडिया गॉट नो proportionate इकोनॉमिक रिटर्न, और फिर दिस इज कॉल्ड द रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया, जब हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले उसकी कीमत देते हैं ना, पर ये ब्रिटिशर्स हमारे रॉ मटेरियल्स की सही कीमत नहीं देते थे। और एक तो ये रॉ मटेरियल्स हमारे इंडिया से लेते थे, गुड्स को ले जाके ब्रिटेन में मशीन में बनाते थे, और गुड्स को मशीन में बना के फिर इंडिया लाके उनके हाई दाम पे उन्हें बेचते थे, तो इससे हमारा वो खर्चा नहीं निकल पाता था जो कि सही में निकलना था, और इस वजह से हमारा भारत का पैसा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। सो दिस इज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ, that the salaries, incomes and savings of Englishmen, the British expenditures in India to the purchase of military goods of establishment, और एक तो ये जो पैसे थे ये से हमारा इंडिया का कोई फायदा नहीं हो रहा था, इससे सिर्फ उन ब्रिटिशर्स का ब्रिटेन में यूज कर रहे थे ये लोग, वहीं उसका फायदा हो रहा था। कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, सब पे उनकी चलती थी। आर्टिजियन फर्दर कंपाउंड ऑफ डिस्पेंस ऑफ द ट्रेडिशंस, पैटर्न्स, बायर्स। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीसेंट्री, फार्मर्स की तो उन्होंने बहुत ही बुरी हाल कर दिया था। फार्मर्स का सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट हुए थे तो वो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, फार्मर्स थे। फार्मर्स की पीसेंट्स वेयर डिसकंटेंट विद ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू, उन्हें अपने ही जमीन से उन्हें अपनी ही जमीन का टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। दे हैड टू पे फॉर द ऑफिशियल लैंड, मतलब उनके अपनी जमीन के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। एंड इफ एनी ऑफ द रीजंस कॉन्क्विस्ट लॉस्ट ऑफ देयर लैंड, अगर वो किसी हालत से अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनसे उनकी जमीन छिन जाती थी। इट वॉज द पीसेंट्री डेड बोर द हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस, और उन पर अगर वो टैक्स नहीं दे पाते तो उन पर बर्डन बढ़ता जाता, टैक्स पर टैक्स उनके। अगर आप एक महीने की प्रीमियम नहीं जमा करते हैं बैंक में तो आपका प्रीमियम नेक्स्ट प्रीमियम में ऐड हो जाता है। तो लाइक द सेम वेज इफ दे कुड नॉट पे द टैक्स एट द दिस मंथ, दैट टैक्स वॉज इंक्लूडेड, दैट टैक्स वॉज इंक्रीज इन द सेकेंड टैक्स, और इस वजह से उनके ऊपर बर्डन बढ़ता चला गया और उनके डबल अमाउंट हो जाते थे जो कि वो नहीं भर पाते थे, और लास्ट में उन्हें मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता था। और मनी लेंडर, उसकी जमीन भी फिर मनी लेंडर से पैसा लेने के बाद इफ दे कुड नॉट गिव रिटर्न दैट अमाउंट टू मनी लेंडर्स, दैट लैंड they were evicted from their land and that land goes in the hand of money lenders.
this. For example, in Bengal, the land revenue was doubled and the amount collected in the Mughals, not even a part of this revenue was spent on the development of agriculture. और जो टैक्स जो लेते थे ये लोग, तो उनका एक रुपया भी इनके एग्रीकल्चर पे ब्रिटिशर्स नहीं इन्वेस्ट करते थे कि चलो भाई अगर इन्होंने टैक्स दिया है तो इन्हें एक अच्छी रॉ मटेरियल्स ला के देते हैं, इन्हें अच्छी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं, कोई मशीनरी प्रोड्यूस कर दे सकते हैं ताकि इन्हें एग्रीकल्चर में आसानी हो। वो कुछ ऐसा नहीं सोचते थे, ये सारा पैसा ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन चला जाता था। And nothing was done for the improvement of agriculture, the welfare of cultivator. They never think about the welfare of Indians. Increase in the land revenue forced many peasants into debt. उन्हें कर्ज में डुबा देती थी ये टैक्स, ये रेवेन्यूज उन्हें किसानों को कर्ज में डुबा दिया और उन्हें मजबूर कर देता था उनके लैंड को बेचने के लिए। एंड द ट्रेडिशनल जमींदार्स वेर रिप्लेस्ड बाय मर्चेंट्स। और ये जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स, ट्रेडिशनल जमींदार, ये जो जमींदार थे ये रिप्लेस, ये हट जाते थे, इनके पास जमीन ही नहीं रही तो जमींदार कहाँ कहलाएंगे अब। और ये सारा मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स के हाथ में चला जाता था और ना यहाँ पे न्यू लैंड ओनर्स बन जाते थे। एंड नो कंसर्न फॉर द पीसेंट्स, इन्हें पीसेंट्स की कोई परवाह ही नहीं रहती थी। दे पुश्ड रेंट इनटू एक्सॉर्बिटेंट लेवल एंड एविक्टेड देयर टेनेंट्स। एविक्टेड, उन्हें बेदखल कर दिया जाता था, उन्हें निकाल दिया जाता था उनकी ही जगह से। इसके वजह से भी लोगों के अंदर ये फीलिंग आया कि अब बहुत हो गया, अब इन ब्रिटिशर्स को हटाना ही पड़ेगा। ग्रोइंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल बिकेम, जब जमीन छिन गई तो अब फार्मर्स क्या करेंगे, कोई काम नहीं है, जो मजदूर काम करते थे सब अनएम्प्लॉयड हो गए, कोई काम ही नहीं था। और फिर 1000 ऑफ सोल्जर्स, वो इंडियंस को रखना ही नहीं चाहते थे अपनी आर्मी में, सोल्जर्स भी जॉबलेस हो गए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल पोस्ट बिकेम अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इंक्लूड्स इंडियन फ्रॉम हाई पोस्ट। वो इंडियंस को हाई पोस्ट देते ही नहीं थे, इंडियंस को हमेशा ब्रिटिशर्स से लो रखते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानते थे। इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर, ये इंडिगो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको उगाने के बाद वो जमीन किसी काम की नहीं होती, जमीन बंजर हो जाती, इनफर्टाइल, द सॉइल, द लैंड बिकम्स इनफर्टाइल, द लैंड डज नॉट रिमेन्स टू, you cannot grow any other crops at that land, no more it remains fertile। हाँ, ये अपनी फर्टिलिटी लैंड्स खो देती है, इसलिए इंडियंस ये इसको उगाना ही नहीं चाहते थे और इसकी ज़रूरत इंडियंस को थी भी नहीं, इसकी ज़रूरत सिर्फ ब्रिटिशर्स को पड़ती थी और ये सिर्फ इंडिया में ही उगाई जाती थी। देयरफॉर ब्रिटिशर्स फोर्स्ड इंडियन टू ग्रो दिस क्रॉप्स, और वो इसकी एक अच्छी खासी बेनिफिट्स भी नहीं देते थे, उसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं देते थे इसके लिए। पीजेंट वेर फोर्स्ड टू कल्टिवेट ओनली इंडिगो इन द फील्ड्स चूजन बाय द ब्रिटिश पार्टनर, और ये कहाँ प्लांटेशन होगी इसकी ये भी ब्रिटिशर्स ही चुनते थे। एंड इफ दे प्लांटेड एनीथिंग एल्स द क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड, और बोला ना बच्चों कि ये इंडिगो जहाँ उगाया जाता था वो जमीन अब कुछ उगाने के लायक ही नहीं रहती थी, वो जमीन फिर बेकार हो जाती थी, इस वजह से ये इंडियंस उगाना नहीं चाहते थे। पर दिस इंडियंस वेर फोर्स्ड टू ग्रो। पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट, यही सारा वजह था, जमीन छीन लेना, हाई टैक्सेस लगा देना, इंडियन सोल्जर्स को उसके जॉब से हटा देना, फिर बहुत सारे नेचुरल क्लैमिटीज़ हुई जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, गवर्नमेंट में कुछ भी हेल्प नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी हेल्प नहीं किया, लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये सारा नेचुरल क्लैमिटीज़, ड्रॉफ्ट, ये सारा फीलिंग्स लोगों के अंदर आया कि नहीं अब तो कुछ, अब इन ब्रिटिशर्स को हटाना ही है। डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिटोक्रेसी, एरिटोक्रेसी मीन्स लैंडलॉर्ड। दिस इज़ अ बुक ऑफ माई डॉटर, सो कुछ मीनिंग्स वो लिख देती है और अंडरलाइन, शी यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन वर्ड्स, मेन थिंग्स, उसके स्कूल में जो होता है वो कर देती है। सो दैट्स वाई माई बुक इज़ लाइक दिस, प्लीज डोंट माइंड माई डियर चिल्ड्रंस। नाउ अब यहाँ पे नया लफड़ा इन ब्रिटिशर्स ने लगाया। व्हाट दे स्टार्टेड दैट, अब आप अपनी ज़मीन की कागजात लाओ। उस वक्त जब लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, उन्हें स्कूल्स कॉलेजेस का उतना नॉलेज ही नहीं था, तो वो ज़मीन के कागजात कहाँ से लाएंगे। पहले ज़माने में तो ये होता था, राजा को कुछ अच्छे सा काम कर दिया, राजा ने कहा हाँ भाई वहाँ मेरी ज़मीन है, वो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम जाओ फल उगाओ, मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ और बेचो, अपनी रोजगार चलाओ। सो द थिंग दैट वाज हैपनिंग, द किंग यूज्ड टू गिफ्ट लैंड टू फार्मर्स। तो उस वक्त तो कोई, देयर वाज नो लीगल डॉक्यूमेंट्स, नो रिटन डॉक्यूमेंट्स, देन हाउ दिस पुअर these peasants will bring the legal documents, how it will bring। so the thing was that Britishers जानते थे कि इनके पास तो कोई legal documents नहीं है, बड़ी आसानी से हम इनके ज़मीनों को कब्जा कर लेंगे।
The landed aristocracy, which included the talukdar and the hereditary landlords, were deprived of their estates, और उन्हें उनके स्टेट से अगर वो नहीं जमा कर पाते थे पेपर तो उन्हें हटा दिया जाता था. ये किसके हिसाब से होता था? ये इनाम कमीशंस के जरिए होता था. 20,000 states were confiscated when the landlords failed to produce evidence, सबूत, उनके जमीन के कागजात, like title deeds. टाइटल डीड्स मतलब प्रॉपर डीड्स, जमीन के कागजात को हम डीड्स बोलते हैं. तो उस समय फार्मर्स के पास थी ही नहीं, क्योंकि कागजात थी ही नहीं. पहले तो मुंह से बोल दिया जाता था. किंग यूज्ड टू से, हाँ आप यू डिड थिंग दिस फॉर मी, दैट इज माई लैंड, यू टेक इट, तुम वो ले लो. सो these confiscated land were sold by public auctions and the highest bidders. एक अच्छे खासे दाम में ब्रिटिशर्स इसे ले लेती थी. Such estates were usually purchased by merchants and moneylenders who did not understand the need of the tenants and exploited them. और बड़ा ही बुरा हाल किया किसानों का. This drove the landed aristocracy to poverty without benefit, the peasantry which suffered under the weight of exorbitant and land revenue. सो इसके चलते बहुत गरीबी, पॉवर्टी इंक्रीज हुई, फार्मर्स के ऊपर हाई लैंड रेवेन्यू लग गए, एंड नथिंग वाज गिवन इन रिटर्न ऑफ लैंड. उनकी ज़मीन भी उससे छीन ली गई, ब्रिटिशर्स ने छीन लिया. द वर्क ऑफ ब्रिटिशर्स, सो टिल हियर यू कैन सी दैट ब्रिटिशर्स का कोई काम नहीं था. ब्रिटिशर्स जस्ट वांटेड टू कैप्चर इंडिया, जस्ट वांटेड टू कैप्चर द पावर, द स्टेट्स ऑफ ऑल इंडियंस. Here comes military causes, economic causes, political causes, and social causes are over. Here comes military causes. So military के भी साथ इनका रवैया कुछ अच्छा नहीं था. ये ब्रिटिशर्स बहुत क्लेवर थे और ये बस जैकेल की तरह हड़पना चाहते थे इंडियंस को. इल ट्रीटमेंट विथ इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के साथ इनका जो रवैया था वो बहुत ही बुरा था. दे डिडंट डू जस्टिस विथ इंडियंस. इंडियन सोल्जर्स वेर वेरी पुअरली पेड. उन्हें अच्छे पोस्ट पे नहीं रखते थे, ऊपर से उन्हें अच्छी पेमेंट नहीं देते थे, उनके रहने की जगह अच्छी नहीं थी. वेरी बैडली हाउस्ड, वेयरिंग कास्ट मार्क्स बियर्ड, और उनके ऊपर ये भी बैन था कि सोल्जर्स दे कैन नॉट यूज एनी देयर कास्ट साइन, लाइक नो बियर्ड, नो टर्बन्स, एंड ऑल सोल्जर्स विल बी इन यूनिफॉर्म, all will look similar, no tilak, no topi, no turban, no beard, and यही सारा this was the thing. And General Service Enlistment Act, according to the traditional it was taboo for a Brahmin to cross a sea. और एक और बात थी इन लोगों में, ये इंडियंस उस वक्त इलिटरेट थे, उन्हें ज़्यादा, और ये ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे. उस वक्त के इंडियंस ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, इन्हें बहुत ज़्यादा बिलीव होता था अपने रिलीजन पे, बहुत फेथ रखते थे. और उस दे हैड अ कस्टम, इट वाज द इंडियंस, दिस इंडियन सोल्जर्स, Britishers said that you have to cross the river and go the other side and had to fight. But these Indians had a taboo that if they cross the sea, they will ruin their religion. Their religion will be destroyed. They had a belief कि अगर हम ये नदी को क्रॉस करते हैं तो हमारी कास्ट डेंजर में आ जाएगी. ऐसा करने से हमारा सोशल बिलीव्स को नुकसान पहुंचेगा. The army will have to go to another country which they do not want it to do, because they had a fear that religion will be destroyed, that religion will be destroyed. So because of that, the Brahmin soldiers saw in this a danger of their caste, and because of that उन्हें अच्छी पेमेंट नहीं मिलती थी. India was not given high payment because वो नदी के पार जाना ही नहीं चाहते थे. लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन इन द ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिशर्स बहुत कम थे और वो इंडियंस को ही रखते थे क्योंकि कम पैसे में इंडियंस रहते थे. इंडियन सोल्जर्स वेर नॉट पेड हाईली, बहुत कम पैसों में वो इंडियन सोल्जर्स को रख लेते थे. सो रेशियो क्या था? 1:4,000. एक ब्रिटिश रहता था 4,000 इंडियन सोल्जर्स में, एक ब्रिटिशर्स रहता था. डलहौजी हैज रिकमेंडेड दैट द मोर ब्रिटिश सोल्जर्स शुड बी रिक्वायरमेंट इन द आर्मी. और अभी डलहौजी ये कह रहे थे कि हाँ अब हमें ब्रिटिश सोल्जर्स को भी रखना है इंडियंस
बहुत ज़्यादा है। Here we can leave this poor performance of British troops. और ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे वो बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। द ब्रिटिश आर्मी सफर्ड मेजर रिजर्व्स इन द फर्स्ट अफगान। ब्रिटिश आर्मी का रिजर्व्ड प्लेसेस था। ब्रिटिशर्स को एक अच्छी सुपीरियरिटी मिलती थी जो इंडियंस को नहीं मिलती थी। इंडियंस को हमेशा ह्यूमिलेट किया जाता था। और पर एंड इन द reverse, the major reverse in the first Afghan war, in the Punjab war and in Crimean war. In 1855, it is the Santhal tribesmen of Bihar and Bengal armed with axes and bows rose up against the British. हाँ, पर यहाँ पे एक राज्य ऐसा था जिन्होंने ब्रिटिश को डिफीट किया था। ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दिस संथाली ट्राइब्समैन। ये आदिवासियों से ब्रिटिश हमेशा डरते थे क्योंकि ये गोरिल्ला युद्ध करते थे। इनके पास न्यू आर्म्ड वेपन्स नहीं थे, इनके पास मॉडलाइज वेपन्स नहीं थे, पर ये इनके पास अपने जो बो रोज थे, एक्सेस थे, और ये इन्हीं से ब्रिटिशर्स पे भारी पड़ जाते थे। स्वीपिंग अवे द ब्रिटिश रूल फ्रॉम देयर एरिया। तो इंडियंस को ये बिलीव हुआ कि नहीं, जब ये संथाली लोग ब्रिटिशर्स को डरा सकते हैं, ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, तो वी इंडियंस क्यों नहीं, हम इंडियंस क्यों नहीं इन्हें हरा सकते, हम भी इंडियंस इन्हें हरा सकते थे। क्योंकि ये संथाली गोरिल्ला युद्ध करते थे और ब्रिटिश हमेशा संथालियों से डरा करते थे। दो द ब्रिटिशर्स सप्रेस द संथाली अपराइजिंग। हालांकि इन्होंने इन्हें हम सप्रेस कर दिया, दबा दिया, बट द डिजास्टर जो था, इन्होंने जो नुकसान ब्रिटिशर्स को पहुंचाया था उसका बहुत बुरा असर पड़ा था ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स इनसे डरते थे। तो ये सीख इंडियंस को मिला, जो इंडियंस के अंदर एक सोच था कि हम ब्रिटिशर्स को कभी हरा नहीं सकते। ये सोच इंडियंस का टूट गया जब इंडियंस को इनके युद्ध में देखा कि ये लोग जब ब्रिटिशर्स को डरा सकते हैं तो हम इंडियंस क्यों नहीं डरा सकते। तो इससे इंडियंस को एक पावर मिला कि नहीं, हम भी जीत सकते हैं, हम भी ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। ब्रिटिशर्स इंडियंस को ये रियलाइज हुआ दैट वी ब्रिटिशर्स आर्मी कुड बी डिफीटेड बाय डिटरमाइंड इंडियन आर्मी। हमें अपनी आर्मी स्ट्रांग करनी होगी और हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते। लोअर सैलरीज, एज आई सेड, इंडियंस बहुत इल ट्रीटेड करते थे इंडियन सोल्जर्स के साथ। इंडियंस को अच्छी पेमेंट भी नहीं देते थे, तो इस वजह से उन्हें लो सैलरीज भी दी जाती थी। हियर और इस स्टोरी का इमीडिएट कॉज ये था। इमीडिएट कॉज क्या था ये अपराइजिंग का? अपराइजिंग का इमीडिएट कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, इन लोगों को एक मॉडर्न एनफील्ड राइफल दी गई थी, एंड दैट एनफील्ड राइफल में in that Enfield rifle had to put that cartilage. That cartilage was cartilage, the new Enfield rifle, they had to loading process of Enfield rifle जो था उसमें एक cartilage रहता था, and that cartilage has to be bitten by the mouth, and that cartilage was greased by the paper, and there was a rumor at that time that the grease that was put on that cartilage was a fat of cow and pig, and the sepoys were convinced that the introduction of this grease is only to destroy our religion. And you can see Hindus is sacred, is Hindus and Muslim religion. The cow is sacred for Hindus and pig is taboo for Muslim. So both did not wanted to bite it from the mouth, and this became the immediate cause of this uprising. So both Hindus and Muslims refused to use this cartilage, and Britishers became aggressive that why they are not using this. Then Britishers forced them to use them, and they said no, we will not use it. And who was the first to ignore to use it? The first was the sepoys feared laws of their caste. उन लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गया कि ये हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं ये ब्रिटिशर्स, इसीलिए ऐसे ऐसे काम करे, ऐसे कार्टिलेज लाया इन्होंने. If they accept the grease cartilage as the result, मंगल पांडे सिपाही led an attack on the, and इसी वजह से मंगल पांडे ने अटैक कर दिया. And the adjuncts of 34th Native
इन्फेंट्री एट बैरकपुर ऑन मार्च मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस कार्टिलेज को नहीं चलाएंगे, और किसी एक को मंगल पांडे ने फायर भी कर दिया था। इस वजह से मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और उसे एग्जीक्यूट किया गया और उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। एंड यू नो माय डियर चिल्ड्रंस, दिस मंगल पांडे इज द फर्स्ट मार्टरी टू डिवोट हिज लाइफ फॉर इंडिया, मदर इंडिया। ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने अपनी जान दी, और इससे लोगों को बहुत सीख मिला। और अब शुरू होता है अपराइजिंग, इवेंट ऑफ मेरठ। ये अपराइजिंग अब स्टार्ट हुआ। ये अपराइजिंग स्टार्ट हुआ मेरठ से। 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ, ऑन May 9th, ओके, मेरठ में शुरू हुआ। एंड स्टार्टेड 1857, रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। ये ब्रिटिश सप्रेस्ड इंडियंस फ्रॉम, ये बैरकपुर में भी हुआ, बहरमपुर में हुआ, अवध में हुआ, बट ब्रिटिश वेयर succeeded to suppressed it, but the revolt that started from मेरठ, जो अपराइजिंग से जो मेरठ हुआ, it was successful, though it failed, British failed to suppress it, but वहाँ का जो मेरठ से जो शुरू हुआ वही आगे जाके चला अपराइजिंग। हाँ, on May 10 the sepoys of मेरठ rushed to the jail and set free the comrades of other convicts। तो जो उस वक्त मंगल पांडे ने जो इग्नोर किया था यूज़ करने, जो कार्टिलेज यूज़ करने के टाइम जिन्होंने इग्नोर किया था, उन सबको जेल में भर दिया गया था। और ये जो है सिपॉयज मेरठ से निकल कर जाते हैं मेरठ, दे सेंटेंस द रिलीजियस इम्प्रिजन, वो रिग्रेस इम्प्रिजन में जाते हैं, और वहाँ जाके मेरठ रश टू द जेल एट मेरठ में जाके वो उन कैदियों को निकालते हैं। हमारे भारतवासी जिन्होंने उन्होंने कैद किया था वो सबको निकाल लेते हैं, बाहर फ्री कर देते हैं। और फिर ये सब दे ऑल मार्च टू दिल्ली। ये लोग कहाँ जाते हैं? बहादुर शाह के पास जाते हैं। एंड सेड बहादुर शाह जफर दैट यू आर नाउ माई आवर किंग एंड नाउ यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ अस, और वी विल, हम लोग मिलकर यहाँ पे तैयारी करेंगे किस तरह अपराइजिंग को शुरू करना है। एंड दिस बहादुर शाह जफर वेलकम द ऑल द इंडियन सोल्जर्स and welcome and write letters to all the chief and rulers of India for uprising। के लिए सबको इन्होंने लेटर लिखा to make the people aware and ask the Indians to take part in that and state of fight against the British's region and possess the British। In the process the British lost Delhi and John Nelson surrounded Delhi। अब जैसे ही इन लोगों को खबर लगा कि अब ये लोग अपराइजिंग की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पूरी मास तैयार हो गई है, अब ये ब्रिटिशर्स बौखला गए। अब बोले नहीं, हम लोगों को पहले दिल्ली कैप्चर करना हो। तो जॉन निकोलसन ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। एंड ऑन इम्प्रेशन बहादुर शाह वॉज फॉल्ड गिल्टी। बहादुर शाह पकड़े गए थे, उन्हें इन्होंने जेल में डाल दिया और यंगून भेज दिया। इवेंट्स ऑफ लखनऊ, बेगम हजरत महल वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध। अवध तो पहले ही इन्होंने कैप्चर कर लिया था, उनकी वाइफ थी अपराइजिंग में, उसे भी इन लोगों ने हटा दिया वहाँ से, और बहुत उनके साथ भी अच्छी बिहेवियर नहीं की, उन्होंने बहुत बुरा किया। एंड हजरत महल हैव टू लिव फॉर नेपाल, उन्हें भी वहाँ से चला गया। कानपुर, इवेंट्स ऑफ कानपुर, नाना साहिब लेड टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एट कानपुर। ब्रिटिश सरेंडर In June 1855, large number of women and children were captured and the British defeated। वहाँ नाना साहिब को ब्रिटिशर्स ने मार दिया, डिफीटेड, उन्हें हरा दिया, मारा नहीं हरा दिया। एंड नाना साहिब also have to leave for नेपाल, वो भी नेपाल चले गए। This general escaped, तांतिया तोपे, ये लोग सब, नाना साहिब, हजरत महल, सब को इन ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, और सबको इतना ही तंग किया कि सबको छोड़कर भागना पड़ा। इवेंट्स ऑफ सेंट्रल झांसी, अब यहाँ झांसी की रानी नहीं भागी। झांसी, इवेंट्स ऑफ झांसी, द बैटल बिगन ऑफ झांसी अर्ली इन जून ही। झांसी की रानी, किंग ऑफ झांसी सेड आई विल नॉट लीव माई किंगडम, आई विल फाइट टिल माई लास्ट ब्रीथ। एंड झांसी वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और ये झांसी कैप्चर्ड भी नहीं होता, पर ये क्यों कैप्चर्ड हुआ? क्योंकि झांसी के जो उसके महल के जो लोग थे उन्हीं लोगों ने उसके साथ बुरा किया। वॉज कैप्चर्ड, उसके जो सैनिक थे उन्होंने ही उसे धोखा दिया। एंड ट्राइड्स ओपन द गेट, और गेट्स को ओपन करने के बाद ब्रिटिशर्स उसी में आ गए। रानी स्केप्ड फ्रॉम द फोर्टलेस
on the night of April and joined Tatya Tope at Kalpi, but still Rani died. रानी लड़ते लड़ते मर गई, अपने बच्चे को भी मार दिया और वो मर गई। और इसी तरह से बहुत सारा सप्रेस्ड हुआ, सप्रेस्ड फेल जरूर हुआ, बट ये एक बहुत अच्छा, इट वॉज अ गुड अटेम्प्ट मेड बाय इंडियंस। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है माय डियर, it is still left some few points. I will complete it because everything is not in your syllabus. So Bareilly Khan Bahadur, the descent of former ruler, took command of the movement. यहाँ पे है किसने किस तरह से कमांड किया था। Struggle led to कुंवर जमींदार of Jagdishpur, Faizabad. Leadership was taken by Maulvi Ahmadullah. These all the how the people took steps, how they took the steps and who took over in charge. These all are written. You see, you can see it afterwards. Consequence of the first war of independence. So what was the consequence? Iska what was the consequence? Consequence was that एंड ऑफ कंपनी रूल। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये था कि कंपनी रूल एंड में आ गई। कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। पर ये ब्रिटिशर्स नहीं गए, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। दे ट्रांसफर्ड द पावर टू गवर्न इंडिया। इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स को अपना पावर दे दिया गवर्न करने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी हट गए। एंड ऑफ कंपनी रूल हो गया। एंड ब्रिटिशर्स कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड। एक ब्रिटिशर्स की ग्रुप बन गई एंड अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स। अब ये ब्रिटिशर्स ही हर मैटर को डील करते थे। लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस रॉय एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस वेर मेड बाय ओपन कंपटीशन अंडर रूल्स मेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और क्वीन विक्टोरिया को क्वीन विक्टोरिया अनाउंस किया गया इंडिया का। रानी किसको बनाया गया? क्वीन विक्टोरिया को। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स किया गया और उस अनाउंसमेंट में कुछ पॉइंट्स दिए गए। लॉर्ड कैनिंग द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड प्रोक्लेम द प्रोमिस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड। अब ये देखो, ये कैसा चालाकी करते हैं, ये कुछ पॉइंट्स देते हैं और क्या कहते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया, अब इंडियंस नाउ यू ऑल आर फ्री विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी से तो बच गए, पर इन ब्रिटिशर्स से इंडिया नहीं बच पाया। अभी भी ये अंडर ब्रिटिश के अंदर ही है ना। यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, देखो क्या अनाउंसमेंट करते हैं। फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। मतलब हम आपके ब्रिटिशर्स कहते हैं दैट वी विल नॉट इंटरफियर इन योर रिलीजियस मैटर एंड इंडियंस एंड यूरोपियंस विल बी ट्रीटेड इक्वल। एजुकेशन एबिलिटी भी आपकी इक्वल होगी। इक्वल एजुकेशन विल बी गिवन टू यूरोपियंस एंड इंडियंस। बट दिस वॉज जस्ट फॉर शो ऑफ, नथिंग वॉज डन। ये बस दिखाने के लिए थे, करने का कुछ भी नहीं था। ब्रिटिशर्स अभी भी इंटरफेरेंस कर ही रहे थे इंडियंस के मामले में। एंड दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द वार, दोज हु फाउंड वार एक्सेप्ट दोज हु वर फाउंड गिल्टी मर्डर ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, सोल्जर्स के साथ जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, उनके साथ, और जिन्होंने गलत किया उनके साथ रहमदिली की जाएगी। बट ये सब कहने के थे, उन्हें दे डिडेंट फॉलो दिस। ये भी बहुत क्लेवर थी। इट डिडेंट फॉलोड एनी ऑफ द रूल्स दैट वर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम ओनली एंड डू इट बेस्ट। एडवांस इंडस्ट्रीज कहते थे हम इंडिया के लिए कुछ करेंगे, बट दे डिड नथिंग फॉर इंडियंस। दिस वॉज जस्ट टू सो। एंड ऑफ मुगल पेशवा। कंपनी रूल का भी एंड हो गया। मुगल पेशवा, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड जो थे वो ही मुस्लिम लास्ट रूलर थे, उसके बाद कोई नहीं आया। डिप्राइव्ड फ्रॉम वॉज डिपोर्टेड टू यंगून। मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड। had taken an active part in uprising। नाना साहेब द लास्ट पेशवा थे, उसके बाद पेशवा भी खत्म हो गए। मराठा रूलर को पेशवा कहते हैं। had taken active part in uprising and had fled to Nepal। the failure of uprising, after the failure of uprising, so the office of Peshwa was came to an end। so end of company rule, end of Mughal Peshwa, end of Mughals and end of Peshwas।
British took the power over Marathas and Mughals also. Relations between princely states. The policy of annexation and doctrine of lamps were abandoned. Doctrine of lamps भी बंद हो गया, फिर पॉलिसी ऑफ एनेक्शन भी, जो सब्सिडरी अलायंस था वो भी बंद हो गया, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कैप्चरिंग भी बंद हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बंद हो गया. सम ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हैव रिमेन लॉयल टू ब्रिटिश. सब कोई इंडियंस ऐसे थे जिन्हें ब्रिटिशर्स से बहुत फायदा होता था और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, तो वो ब्रिटिश के साथ ही बने रहें और वो ब्रिटिशर्स का साथ भी दिया अपराइजिंग को खत्म करने में. कुछ गद्दार इंडियंस भी थे जो भिड़ना नहीं, वो चाहते थे हमें तो फायदा हो ही रहा है, हम क्यों भिड़ेंगे ब्रिटिशर्स से. सो वो ब्रिटिशर्स के साथ थे अपराइजिंग में, इंडियंस के साथ नहीं थे. दे वर नॉट लॉयल टू इंडियंस बट दे वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स. The right to adopt hire would be respected and the integrity of their, they will help them in future and they will help them in future and Britishers will give military help to Indians. ये सारा था. Queen Victoria assumed that the title of Empress of India, the Indian princess willingly became junior partner or agents of British crown because they were promised that they would continue as ruler of the state. And this Queen Victoria इस जाति ये सब पॉइंट्स दिखाकर ये सब कर कर ये कहती थी कि हम इंडियंस, हम तुम्हें अपने दोस्त की तरह करेंगे, तुम्हारे साथ वी विल मेक यू गुड पार्टनर, एक जूनियर पार्टनर बना के रखेंगे. बट ये सब गलत था. सी वॉज ऑल्सो अ वेरी क्लेवर एंड लायर. पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश. डिवाइड एंड रूल, वो लड़वाना चाहते थे और दूरी पैदा करना चाहते थे लोगों के बीच. बाय टर्निंग द प्रिंसेस अगेंस्ट द पीपल, कास्ट अगेंस्ट कास्ट, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाना और बड़ी जाति को छोटे जाति से लड़वाना. ग्रुप अगेंस्ट ग्रुप, अबव ऑल हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये ब्रिटिशर्स का यही काम था. ब्रिटिश ऑल्सो इनकरेज हेट्रेड एंड इन फीलिंग अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम. मुस्लिम्स के मन में हिंदू के खिलाफ कुछ भर देना, हिंदूज के मन में मुस्लिम के खिलाफ कुछ भर देना और फिर दोनों को लड़वा देना. यही काम था ब्रिटिशर्स का. रेशियल एंटोगनिज्म, वो ब्रिटिशर्स हमेशा अपने आप को, ब्रिटिशर्स ऑलवेज थिंक देमसेल्फ सुपीरियर. एक दे हैड द रिजर्व्ड सीट्स फॉर देमसेल्फ एंड पुट इंडियंस इन द लोअर, ऑलवेज इन द लोअर. सोशल डिस्टेंस, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस था. एंड अथॉरिटी ऑफ इंडियंस, रेलवेज, कंपार्टमेंट्स, parks, hotels, clubs, these were reserved for Europeans only, or Indians was not given positions. Indians were deprived. Indians were not given to even to sit in the place where Britishers used to use. Britishers ko, they used to put a board where they used to do party and all. They used to hang a board that Indians are dogs and Indians are not allowed. These were the consequence of that time. Foreign policy, protections of Indian empire, expansion of British economic and commercial interest in Asia and Africa. Britishers अपनी इंटरेस्ट दिखाने लगे एशिया एंड अफ्रीका में, कैप्चरिंग करने लगे. ये तो काम था फॉरेन पॉलिसी कैप्चर करना ब्रिटिशर्स का. इंक्रीज रेशियल बिटरनेस, एंड रेशियल बिटरनेस को इंक्रीज कर दिया आफ्टर द अपराइजिंग. And the entire government was remodeled and based on India of superior race. And Britishers ने इंडिया को रीमोल्ड कर दिया. दुश्मन भाइयों को भाइयों से लड़वाना लगा, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के एक अजीब सा ही रूप बना दिया देश का. मतलब हमारे देश का, हमारे भाईचारा को ही तोड़ दिया. रिलीजियस चेंजेस हो गया. एंड चेंज इन आर्मी, आर्मी में बहुत बड़ा चेंज लाया इन्होंने, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज लाए. द रेशियो ऑफ यूरोपियंस, वहाँ था 4000 सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स पे एक ब्रिटिशर्स था, पर यहाँ पे इन्होंने लगभग बराबर कर दी रेशियो को, क्योंकि इन्हें डर हो गया. अपराइजिंग देखने के बाद ब्रिटिशर्स के अंदर एक फेयर आ गया कि नाउ दिस इंडियंस कैन राइज एनी टाइम. द रेशियो ऑफ यूरोपियंस इंडियन ट्रूप वॉज फिक्स्ड एट 1:2, 2:5. यू कैन सी हियर, यहाँ पे वो लोग बराबर का ही रखने लगे. प्रिंसिपल अडॉप्टेड दैट द नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस दैट वन ऑफ द इंडियन ट्रूप्स. यूरोपियन ट्रूप्स वेर केप्ट इन द जियोग्राफिकल मेंटल पोजीशन. एक अच्छी फैसिलिटी दी जाती थी यूरोपियंस को, जबकि इंडियंस को नहीं दी जाती थी.
एंड इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम राइजिंग अगेन द ब्रिटिशर्स रूल द सोफिस्टिकेटेड। अब ये ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि इंडियंस कभी भी अपराइजिंग कर सकते हैं, तो इस वजह से इंडियंस वेर नॉट गिवन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, एडवांस वेपन्स, इंप्रूव्ड वेपन्स वेर नॉट गिवन टू इंडियंस। इंडियंस को पुराने खटारा वेपन्स दिए जाते थे और अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से ब्रिटिशर्स वेर अलाउड टू यूज इट। एंड ऑन अ फ्यू यूनिट्स, माउंटेन यूनिट्स एंड disbanded. All Indians at artillery units में expectations of a few mountain units में कुछ ही हद तक उन लोगों को आज़ादी दी जाती थी। Discriminations on the basis of caste के बेसिस पे उन्हें मिलिट्री में भी जगह दी जाती थी। Discourage nationalism misuse such as introduction of caste community most regiments were there. न्यूज़पेपर जनरल्स, न्यूज़पेपर्स इंडियंस आर्मी तक नहीं पहुंचाई जाती थी। उन्हें बाहर का कोई न्यूज़ नहीं दिया जाता था कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, कुछ नहीं। इंडियंस वेर केप्ट अवे फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड द लाइफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, इंडिया वेर टर्न इनटू टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी। एक्सपोर्टिंग, इंडिया रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्टर बन गई और फिनिश्ड गुड्स की इंपोर्टर बन गई। अपने ही सामान को, इंडिया को अपने ही सामान अपने ही पैसों से खरीदना पड़ रहा था। और द सेक्रेटरी सैलरी ऑफ अलाउंस, द सैलरी ऑफ द अलाउंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल, द सर्वेंट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, लार्ज ड्रेन। और हमारा पैसा ब्रिटेन ड्रेन हो रहा था। इंडियन रिसोर्सेज मैनी वॉज पेड, और इंडिया के ही रिसोर्सेज से ब्रिटिशर्स को पेमेंट मिलती थी। Peasants were impoverished under the British rule. The indigo peasants of Bihar revolted, और इस वजह से इंडिगो पीजेंट्स, जो इंडिगो उगाने के जिन पीजेंट्स जो किसानों को कहा जाता था, वो रिवोल्ट करना शुरू की लार्ज स्केल में 1866 से 68 तक। और वीविंग इंडस्ट्रीज, इंडियंस को जो हाथ से काम करती थी, कढ़ाई बुनाई करती थी, वो सब बंद हो गई, वो सब इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। Indians had to pay heavy interest on the British capital invest India. The British invested their surplus capital in Indian railways. और ब्रिटिश सिर्फ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती थी? अपने फ़ायदे के लिए इंडिया में इन्वेस्ट की। रेलवेज में, प्लांटेशंस में, कोल माइंस में, जूट माइंस और शिपिंग्स, इसी सब चीज़, सिर्फ अपनी फ़ायदा जहाँ होता था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स पैसा वहीं लगाते थे और कहीं नहीं लगाते थे। बट एक ये अपराइजिंग का बेनिफिट इंडिया को ये हुआ कि नेशनलिज्म्स की फीलिंग जागी। द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। ये फर्स्ट स्ट्रगल था जो ब्रिटिश के जुल्म के खिलाफ इंडियंस ने उठकर अपना एक मास होकर पहला कदम उठाया। और इससे जो लोगों ने, द पीपल दो टू द मार्टरीज हु गिव लाइफ, सेक्रीफाइसेस ऑफ देयर लाइफ, इससे कुछ सीखने को मिला। सेक्रीफाइसेस मेड बाय रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, एंड सो दे गिव द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर फ्रीडम फाइटर्स एंड दे बिकम द हीरो ऑफ इंडिया। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स द वाइडनिंग, ये ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत बड़ा दूरी बना दी है। वाइडन द गल्फ बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदूज एंड मुस्लिम शोड ग्रेट enthusiasm एंड zeal टू फाइट अगेंस्ट द एलियन गवर्नमेंट। वो खुद आपस में ही लड़ने लगे। बट आफ्टर द अपराइजिंग द गल्फ बिटवीन टू कम्युनिटीज वाइडन, और इसके चलते दोनों अपराइजिंग के बाद दोनों के बीच की दुश्मनी और बढ़ गई। दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, and it was deliberate attempt so that the two communities might never come together. ब्रिटिश को डर था कि अगर ये एकजुट होएं तो ये फिर अपराइजिंग के लिए लड़े, ये अपराइज होएंगे, ये फिर एक साथ होके जुट जाएंगे। सो इन्हें तोड़ के रखने में ही हमारी भलाई है। ये ब्रिटिशर्स वेर वेरी क्लेवर। So drawback is not in your syllabus. This was all, my dear children. I hope I was clear to all of you. I tried, I gave my best to make you explain this chapter. Hope I may be clear to you all. If not, please like, share and subscribe my channel, my dear children. And please comment. And please comment and say that whether am I clear to you all or not, so that I will make improvement in my videos. Actually, children, I don't edit video. I will have to see for it. So, hope I am clear to my dear children. Please don't forget to like, share and subscribe. Study with Razia Riaz. Okay? Till then, take care, my dear children. Goodbye.